In this illustration, it is given an infinitely long wire lying along z-axis carrying current capital I flowing in the positive z direction. The plane of the screen is xy plane and positive z direction is perpendicular to the screen and towards you. Okay. And along the z-axis, there is a long infinite length current carrying wire carrying current capital I. Current की direction है आपकी तरफ. There is no other current. It is given. Consider a circle in a xy plane. This is the circle under consideration with the center 2 meter 0 and 0 and radius 1 meter. We need to find the value of the line integral B dot dl of the magnetic field vector B along the perimeter of a given circle moving from, in A part of the question, we need to move from 1 0 0, 1 0 0 to 3 0 0. That means इस path के along हमें इस line integral B dot dl की value calculate करनी है. And in the B part of the question, we need to move from 3 0 0 to 2 1 0. 2 1 0 will be at this position. So we need to move like this. Okay. तो यहाँ पे हमें दोनों लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को प्लेस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन. ओके. एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 1 0 0 टू 3 0 0. हमें यहाँ से यहाँ तक इस पाथ के अलोंग हमें इस लाइन इंटीग्रल B dot dl की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके. And we know Ampere law is defined for a closed loop. We know the Ampere law is closed linear integral of the magnetic field is equal to mu naught multiplied by I enclosed. And we know right hand side part of this equation can be calculated by much is. और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा. दैट मीन्स we need to solve the problem, this problem by right hand side part of the equation. किसी तरीके से हम लोग right hand side part से इस equation को या इस part को solve करें. For this we need to consider a closed loop. हमें यहाँ पे कोई एक closed loop consider करना होगा जिसमें ये वाला path जो हम लोगों ने highlight किया हुआ है वो जरूर include होना चाहिए. So let us consider a closed loop like this. तो मैं एक closed loop ऐसे consider कर लेता हूँ. This is A, B, C, O and A. This is a closed loop. Okay. Now consider this closed loop. We can consider this closed loop as a Ampere loop. So let us consider this closed loop. इस closed loop को हम लोग consider करते हैं A, B, C, O, A. A, B, C, O, A. Okay. You can observe there is no current enclosed by this loop. That means you can observe the right hand side part. अगर कोई भी करंट यहाँ पे इनक्लोज ना हो तो हम लोग कहेंगे क्लोज लीनियर इंटीग्रल फॉर एनी क्लोज लूप और एम्पियर लूप शुड बी इक्वल टू 0. इट मींस द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ दिस एम्पियर इक्वेशन शुड बी 0. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B dot dl is equal to 0. Okay. Now you can observe this closed path consists of two sections. One is the semicircular section ABC and second is the AC section. AC section is the straight section जो diameter के along है. So we can write this equation as a summation of these two linear integral. तो मैं यहाँ पे इस equation को linear integral ABC and linear integral A to C दो integral के summation के form में लिख देता हूँ. ये मैंने लिख दिया. Okay. And summation of these two linear integrals should be equal to 0. 0 होना जरूरी है क्योंकि closed loop में कोई भी current enclosed नहीं थी. That means we can write the integral for the path ABC, linear integral for the path ABC. That should be equal to minus of the integral C to A B dot dl. हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे. Okay. अब इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. मैं ये कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे. ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया. वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन AC. अगर आप AC लाइन को कंसीडर करो
तो AC लाइन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट लेंथ वायर. This is the infinite length wire placed at origin, and direction of the current is towards you, perpendicular to the screen and towards you. And we can find the direction of the magnetic field created by this wire by the right hand rule. अब right hand rule अगर हमें अप्लाई करना है तो हम लोग इस वायर को हेल्ड करेंगे, thumb in the direction of the current and curling of the finger give the direction of the magnetic field. तो अगर आप curling of the finger करेंगे तो यहाँ पे curling of the finger होगी counter clockwise sense पे. That means the direction of the magnetic field at each and every point on the line AC is perpendicular to the line, और ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से होगी, वो इस तरह से होगी, सभी पॉइंट्स में ऐसी होगी. एंड वी नो दिस इंटीग्रल C to A B dot dl, देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड DL वेक्टर, अगर आप यहाँ पे कोई भी सेक्शन लेते हो DL लेंथ के, तो you will find the angle between the magnetic field vector and DL vector is 90 degree. अगर 90 डिग्री है तो dot product should be 0. That means this integral should be equal to 0. तो यहाँ पे हम लोग इस इंटीग्रल को 0 के बराबर लिख देंगे. Okay. Now if we substitute the value of this integral C to A B dot dl equal to 0, that means this integral, that is ABC path, ABC इस पाथ के लिए जो इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू मूव फ्रॉम 300 यहां से 210 यहां तक मूव करना है. तो अब हम लोग बी पार्ट को एनालाइज कर लेते हैं. ओके, सो लेट अस मेक द पाथ 300 टू this position. Okay, coordinate of this is 210. ये मैंने इस पाथ को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. And we know we can solve the linear integral or any type of the integral related to the Ampere law if we consider a closed loop, because we have the equation of the Ampere law as closed linear integral equal to mu naught multiplied by I enclosed. तो यहाँ पे भी हमें एक क्लोज लूप फॉर्म करना होगा, और क्लोज लूप में कंपलसरी कंडीशन क्या है कि जिस पाथ का लीनियर इंटीग्रल आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, दैट पार्ट शुड बी इंक्लूड इनटू द क्लोज पाथ. जो क्लोज पाथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसमें वो इंक्लूड होना जरूरी है. सो लेट अस कंसीडर वन मोर पाथ. क्लोज पाथ बनाने के लिए एक पाथ और कंसीडर करते हैं. तो लेट अस ज्वाइन दिस पॉइंट बी टू द ओरिजिन. मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं. सपोज दिस डिस्टेंस इज r, और यहाँ पे r रेडियस का आर्क अगर मैं ड्रॉ कर दूं, लेट्स अस ड्रॉ इट आर्क ऑफ रेडियस स्मॉल r. तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया. ओके, सपोज दिस आर्क इज मेकिंग एंगल थीटा एट द सेंटर. तो मैंने यहाँ पे इसमें थीटा डिग्री एंगल बना दिया. नाउ वी हैव टू लाइंस. हम लोग इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लीनियर इंटीग्रल C to B, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लीनियर इंटीग्रल. अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना भी पड़े तो हम लोग B to D में कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज वी नो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल इन द पाथ, एंड वी इवन कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग यहाँ पे लीनियर इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेशन के थ्रू भी कैलकुलेट करेंगे, तो वी कैन अफोर्ड टू कैलकुलेट. नाउ लेट अस क्लोज दिस लूप. वी नो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑन द डायमेट्रिकल प्लेन AC is perpendicular to the line. तो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ तो क्लोज लूप बन जाएगा. तो अब हमारे पास एक क्लोज लूप फॉर्म हो गया. नाउ लेट अस कंसीडर द क्लोज लूप. अब इस क्लोज लूप ADCA, इस क्लोज लूप को कंसीडर करते हैं. ओके, दिस इज C, B, D and C. And we know this closed loop is not having any current enclosed. और अगर क्लोज लूप के अंदर कोई भी करंट इनक्लोज ना हो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिस पार्ट विल बी 0, और राइट हैंड साइड में अगर ये पार्ट 0 हो रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज क्लोज लीनियर इंटीग्रल फॉर द क्लोज पाथ शुड बी 0. दैट मीन्स द क्लोज लीनियर इंटीग्रल वैल्यू फॉर दिस क्लोज पाथ CBDC शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कोई भी करंट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लोज लीनियर इंटीग्रल की वैल्यू इस क्लोज पाथ के लिए 0 होगी. तो इसको मैं 0 के बराबर लिख देता हूं. ओके, नाउ वी नो
in this closed path we have three sections. Section C to B, where you are interested to find the linear integral value, this section B to D, and this section C to D. So we can write this closed linear integral as a summation of these three sections. इन यहाँ पे तीनों सेक्शन का हम लोग समेशन कर देते हैं. ओके, एंड वी नो द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD. CD लाइन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड रूल से हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं. ये ऊपर की तरफ आएगी, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ से, इस तरह से. दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड dl vector on this line CD is perpendicular, and we know this is a dot product. If it is a dot product, that means this linear integral should be equal to 0. अगर ये linear integral 0 है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि summation of this plus this integral should be equal to 0. अब यहाँ पे इन दोनों का summation 0 के बराबर होना जरूरी है. तो यहाँ पे तो ये हमारे पास ये 0 हो गया. अब मैं इन दोनों का summation 0 कर दूंगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज में. तो यहाँ पे दोनों का मैंने लीनियर इंटीग्रल का समेशन 0 के बराबर कर दिया. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल फॉर द पाथ B to D. B to D पाथ में हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट करने की पोजीशन में है. वी नो फ्रॉम द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द लाइन BD. ओके, राइट हैंड रूल से अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में आएगी, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन दिस आर्क इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस लॉन्ग वायर. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट. तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल. कुछ इस तरह से आएगी. और अगर हम लोग यहाँ पे DL वेक्टर अगर ड्रॉ करें, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द DL वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स DL वेक्टर एंड B वेक्टर विल मेक एंगल 180 डिग्री. तो यहाँ पे इस आर्क में DL वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे. ओके, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B. वी नो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. B इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस इनफाइनाइट लेंथ वायर कैरिंग करंट I, and distance of the point under consideration, each and every point situated on the arc is at a distance small r. So the magnetic field at the position of the arc is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Okay, now we can find the value of r. r की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. We can draw perpendicular from B to horizontal line on x axis. हम लोग यहाँ पे ऐसे perpendicular ड्रॉ कर दें. So we can observe here this is a right angle triangle, and this line, this coordinate is 2, 1 and 0. The length of this line should be equal to 1 meter, and this is 2 meter. So r is equal to under root 1 square plus 2 square. पाइथागोरस से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, and this value is √5. तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई √5. Now we can substitute the value of r in this equation. So this is equal to mu naught I divided by 2 pi multiplied by √5. This is the magnitude of the magnetic field at each and every point situated on the arc. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ओके, अब अगर यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं कोई भी DL सेक्शन लेता हूँ, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम B to D, तो DL वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर. दैट मीन्स दिस एंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास आएगा 180 डिग्री. अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लें इस इंटीग्रल को. ओके, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे B to D, B डॉट DL. सो हियर वी कैन राइट B मल्टीप्लाइड बाई DL मल्टीप्लाइड बाई cos 180 डिग्री. तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेता हूँ. cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई √5. ओके, तो मैं B की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. B की वैल्यू हर पॉइंट में कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस B आउटसाइड द इंटीग्रल, एंड दिस इंटीग्रल इज B to D DL. दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ DL लेंथ. दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ दिस आर्क. हमें यहाँ पे इस इंटीग्रल का मतलब होगा टोटल लेंथ ऑफ द आर्क, एंड वी नो एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज थीटा and radius is small r. So we can write this integral as r multiplied by theta, and B की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी.
नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन ऑब्जर्व tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा बोथ। हम लोग यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की पोजीशन में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √5 एंड √5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल b टू d b डॉट dl इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई tan इनवर्स 1/2। ओके, अब अगर मैं इस वैल्यू को b टू d इंटीग्रल ये जो मैंने कैलकुलेट किया है अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल c टू b। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक लीनियर इंटीग्रल की वैल्यू अब कैलकुलेट करने की पोजीशन आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके, नाउ वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन। सो द लीनियर इंटीग्रल फ्रॉम c टू b of magnetic field, that means c to b b dot dl integral is equal to mu naught I divided by 2 pi tan inverse 1/2. This is the answer. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.